Hello students, today we are going to learn about supply and place of supply. So first of all we start what is meaning of taxable event. Actually taxable event is that one of happening of which the charge is fixed. It is that event which on its occurrence creates or attracts the liability of tax. Such liability doesn't occur at the any earlier or later point of time. So the supply of goods or services or both are taxable event in GST. Okay, so place of supply is very important. Place of supply from where goods or services are supplied. Mm, so the place of supply defines whether the supply or transaction is intrastate or interstate. Interstate means within same state. For example, a dealer of or a trader of Raipur um, supplies goods to the trader of Bilaspur. So this type of supply is called intrastate because within the same state in Chhattisgarh. And interstate means ki supply, when supply a trader supplies its goods or services in other state. For example, Chhattisgarh trader supplies goods or services in UP or same Agra or Union Territory. Any this is called interstate supply. So this is the example under see the example. A trader of Indore supplies goods valued rupees 5 lakhs to a trader of Gwalior. So Indore and Gwalior both are situated in Madhya Pradesh. So this type of supply is called intrastate supply. Under such a situation, CGST and SGST at equal prevalent rate shall be levied on value of supply. Some exemptions are also there, like goods import into India till they cross the customs frontier of India. Second is supply of goods to or by a sage developer or a sage unit. Okay, and then third is supplies made to a tourist who is leaving India and refund of IGST payable to him. So let's see what is interstate supply. Supply of goods and services in course of interstate trade or commerce is called interstate supply. It means when the supplier and recipient are in two different states of India only, then such supply is interstate supply and attracts imposition of IGST. So please remember that in interstate supply there is imposition of IGST. A merchant or supplier of Agra has supplied goods value rupees 5 lakhs to trader or recipient of Jaipur. So Agra is in UP and Jaipur in Rajasthan. So this is interstate supply. Therefore, movement of goods in from UP to Rajasthan is interstate supply. Okay, the importance of of supply place of supply is very important in calculation of
GST. Goods and services, how goods and services are, first of all we have to clear that whether the goods and or services supply is intrastate or interstate. Okay, then we have to determine the percentage of GST levied. So supply includes all forms of supply, goods and services, and includes agreeing to supply when they are for a consideration and in the course or furtherance of business. So supply excludes negative list of services and includes supply for consideration in course or furtherance of business, imposition of services for consideration, whether or not in course or furtherance of business, supply without consideration, and activities to be treated as supply of goods or supply of services. So the some forms of supply is sales, barters, license, lease, transfer, exchange, rental and disposal. ये सब फॉर्म्स हैं सप्लाई के. सो एक क्वेश्चन जो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होते हैं. लोकेशन ऑफ सप्लायर, मान लीजिए कि एक सप्लायर है जो पंजाब में है और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब में ही है, तो वहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा टैक्स वो होगा CGST 6% एंड SGST 6%. ठीक है. कर्नाटका का एक सप्लायर है जो कि सप्लाई कर रहा है उड़ीसा में, देन यहाँ पर ये इंटर स्टेट हो गया. पंजाब जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था वो इंटर स्टेट था, तो वहाँ पे CGST लगाएंगे. एप्लीकेबल टैक्स जो है 6% CGST एंड 6% SGST. एंड किसके ऊपर लगेगा ये? एसेसेबल वैल्यू पे. ठीक है. एंड कर्नाटका का जो है, कर्नाटका से सप्लाई हो रही है कहाँ पे? उड़ीसा में. देन ये हो गया इंटर स्टेट, इसलिए यहाँ पर IGST 12% आएगा. अंडमान से सप्लाई अगर करते हैं महाराष्ट्र में, देन ये भी इंटर स्टेट हुआ क्योंकि अंडमान जो है यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ से जब सप्लाई होगा तो यहाँ भी IGST लगेगा 12%. IGST 12% है एंड CGST एंड SGST ये 6% लगता है. देन हरियाणा से गोवा या गोवा से गोवा, यहाँ ये इंट्रा स्टेट हुआ क्योंकि गोवा टू गोवा इंट्रा स्टेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ CGST 6% एंड SGST 6% लगेगा. सेस जो जोन होता है, जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन होता है, वो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का है अगर वो, तो वहाँ पर नॉन सेज यूनिट में हिमाचल प्रदेश के सप्लाई हो रहा है तो वहाँ भी IGST लगता है, ये याद रखिएगा. देन टाइप्स ऑफ सप्लाई, जो मैंने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ सप्लाई. टाइप्स ऑफ सप्लाई में जो जियोग्राफिकल एरिया होता है एंड यूज ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट. तो जितनी भी सप्लाई होती है, ऑल द transactions relating to goods and services both are integrated as supply, which may be divided into two basic: geographical area and supply by recipient. ठीक है. तो ये दो तरह के टाइप्स ऑफ सप्लाई में दो तरह का मेन है. जियोग्राफिकल एरिया में हम क्या क्या देखते हैं? इंडियन सप्लाई एंड फॉरेन सप्लाई. फॉरेन सप्लाई जब वहाँ होता है तो वहाँ पे क्या एप्लीकेबल होता है? कस्टम्स ड्यूटी. एंड इंडियन सप्लाई में फिर यहाँ पर लगता है GST.
तो वो CGST है, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। CGST एंड SGST इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है एंड इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST लगता है, ये ध्यान रखिएगा। यूज ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट, तो यहाँ पर होगा बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, तो ये चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल एरिया में अगर सप्लायर जो है लोकेटेड है वो विद इन इंडिया है, तो जनरली यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई या इंडियन सप्लाई इसको बोलेंगे, एंड फॉरेन सप्लाई है तो वो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया होगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है। देन यूज ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट, इनवर्ट सप्लाई जो रिसीव बाय रिसिपिएंट में बी utilized in making outward supply to a manufacturer or under distribution chain or to an end consumer। ठीक है, तो based upon such utilizations that supply may be classified as, first one is business to business supply and second is business to consumer supply। ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा यूज ऑफ सप्लाई बाय रेसिपिएंट में, B2B एंड B2C। B2B में क्या होता है, when recipient of an inward supply utilize such supply as outward supply to another business entity। In business parlance such supply is abbreviated by B2B supply, abbreviated by B2B supply। Here recipient is entitled to claim input tax credit of GST paid on inward supply। ठीक है, और जो बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई है, व्हेन रिसिपिएंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई मेक्स एन आउटवर्ड सप्लाई टू एन एंड कंज्यूमर एंड नॉट ए बिजनेस एंटिटी, मतलब कि यहाँ बिजनेस से कंज्यूमर तक जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई। So what is the difference between B2B and B2C? C, transactions between one business entity to and the another business, मतलब business to business होता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में सप्लाई हो रही है, जबकि बिजनेस ट्रांजेक्शन B2C में क्या होता है, बिजनेस से वो कंज्यूमर तक जा रहा है। देन रेसिपिएंट इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, बिजनेस टू बिजनेस में जो रेसिपिएंट होता है, रिसीवर जो होता है, वो एंटाइटल्ड होता है क्लेम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, एंड जो रिसिपिएंट है B2C में, वो रिसिपिएंट में से यहाँ पे कंज्यूमर होगा, वो एंटाइटल्ड नहीं होता टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एज नो फर्दर सप्लाई इन्वॉल्व, क्योंकि बिजनेस के बाद वो कंज्यूमर के पास आ जाता है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। देन रिसिपिएंट इज एक्टिंग इन कोर्स ऑफ बिजनेस टू मेक आउटवर्ड सप्लाई। B2B में जो रिसिपिएंट होता है वो बिजनेस को में टू मेक आउटवर्ड सप्लाई, एंड जो B2C में रिसिपिएंट इज नॉट मेकिंग एनी आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि वो खुद कंज्यूम करने के लिए वो परचेस करता है। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट ट्रेड के कंडीशन में क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन दोनों के बारे में देखते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स मीन्स एनी सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर टू डिफरेंट स्टेट्स, आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स और आर इन टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और ए स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरीज, ये तीनों कंडीशन होती है। ठीक है, एंड सप्लाई फॉर सर्विसेज के लिए है सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, एनी सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स
or two different union territories or a state and a union territory. Supply of goods in course of import into the territory of India till they cross the customs frontiers of India shall be deemed to be a supply of goods in the course of interstate trade or कॉमर्स. तो यहाँ पर जैसे ही वो क्रॉस करेगा बाउंड्री तो वहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी एप्लीकेबल होती है. एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. ठीक है, तो ये डिटेल्स थी, इसको जरूर याद करके रखिएगा. एंड देन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन स्टेट या इंट्रास्टेट, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है यहाँ पर स्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब एक ही स्टेट में होता है. लोकेशन दोनों का जो रिसीवर होता है एंड सप्लायर दोनों का लोकेशन एक ही स्टेट में होता है, वो चाहे यूनियन टेरिटरी हो या कोई स्टेट हो. एंड वहीं का जैसे छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ में ही होगा. दोनों जो बिजनेसमैन हैं, दोनों बिजनेसमैन एक ही स्टेट में रहते हैं और वहीं पे वो रिसीव कर रहे हैं. इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय ए सेल्स डेवलपर और टू और बाय एन सेल्स यूनिट. ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है. एंड देन गुड्स imported in India till they cross the customs frontiers of India. ठीक है, जो गुड्स इंपोर्ट करके आ रही हैं वो बॉर्डर के बाद, क्योंकि बॉर्डर पे वहां पर कस्टम्स ड्यूटी ही एप्लीकेबल होती है. सप्लाईज मेड टू टूरिस्ट, टूरिस्ट को सप्लाई करते हैं तो वो इंट्रास्टेट सेल में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, तो इंटरस्टेट सेल में जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज मीन्स दैट सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी. एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाय ए सेल्स डेवलपर और टू और बाय एन सेल्स यूनिट. सेल्स यूनिट पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं. देन ये आई थिंक ये आप लोग को याद रखेंगे, ये याद रखेंगे आप लोग. ये जो है इसके आगे वाला यहाँ पर ध्यान रखेंगे. इसमें भी कंडीशन है, अगर जो सप्लायर है ये वेयर ए पर्सन हैज़ एन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एन इस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट और एन इस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी. यहाँ भी 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं. और ए पर्सन कैरीज बिजनेस, है ना, तो वो कैसा होता है वेयर ए पर्सन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तीनों यूनियन टेरिटरीज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई अभी हमने देखा. उसके बाद में इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा जो कि छूट गया हम लोग का, वो है ज़ीरो रेटेड सप्लाई. ये क्या होता है, ठीक है. और जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई जो होता है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई को पहले देखेंगे. जो सेक्शन 242 है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में डिफाइन है. टर्म एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विसेज, गुड्स एंड और सर्विसेज or both which are not taxable under this act and including such supply of goods
and or not services which are specified in Schedule 3 of the Act or which may be exempted from tax under Section 10. ठीक है, तो जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में जो मेंशन है मैटर, उसमें है पहला मैटर इसका है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ का कोई एम्प्लॉय अगर वो बोकारो स्टील प्लांट में जाता है और वहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इसको इंटर स्टेट सर्विस नहीं बोलेंगे, ये एक ही कंसर्न में वो उसमें गया है तो ये इंटर स्टेट सेल्स में इंटर स्टेट सर्विसेज में नहीं आएगा. ठीक है, इसी तरह से सर्विसेज बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. द टर्म कोर्ट includes डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तीनों लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पे. ठीक है, एंड द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज एंड मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज. ठीक है, तो ये इसमें भी ये जो शेड्यूल 3 में ये मेंशन है कि इनको एक्टिविटीज जो होती है ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड और नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ये सारी एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में मेंशन है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन pursuant of provisions of the constitution in that capacity, and the duties performed by any person as a chairperson or member or director in any body established by the central government or state government or any local authority. And next is services of the फ्यूनरल बरियल. इस तरह का जो सर्विसेज होता है वहाँ पर भी अगर कुछ इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो भी होता है वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता. एंड एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. ओके, देन इसमें एक और आता है जो जीरो रेटेड सप्लाई है. ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 109 में डिफाइंड है द टर्म जीरो रेटेड सप्लाई और एज ए सप्लाई ऑफ एनी गुड्स and services or both on which no tax is payable but the credit of input tax related to that supply of admissible export shall be treated as zero rated supply according to section 16(1) of the IGST Act 2017. Says that about zero rated supply. Zero rated supply means any of the taxable supply of goods or services, namely export of goods and or services and supply of goods and services to a sales developer और सेल्स यूनिट. तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा. जीरो रेटेड सप्लाई कहाँ पर होती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को तब वहाँ पर ये जीरो रेटेड होता है. एंड जो सप्लाई होता है से जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ पर या उसकी यूनिट में भेजा जाता है. तो दिस मीन्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ supplies, export and supply to SAGES are zero rated supplies. मतलब ध्यान रखना, जीरो रेटेड सप्लाई अगर बोलेंगे तो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड सेकेंड इज सप्लाई टू सेजेस. सेजेस मीन्स सेल्स डेवलपर्स और सेल्स यूनिट.
ठीक है। एक्सपोर्ट टू सप्लाई में क्या होता है, सेक्शन 244 में ये बताया गया है कि द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया। सेकंड कंडीशन है कि द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। थर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया। द पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन convertible foreign exchange, and the supplier of service and recipient of services are not merely establishment of a distinct person। तो इतने सब प्रॉब्लम है, इतने सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं। एंड जो सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। द टर्म सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स importation of a service whether or not in the course or furtherance of a business। तो इसको ध्यान रखिएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या आता है, टैक्सेबिलिटी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में व्हेन कंसिडरेशन इज टेकन एंड व्हेन विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो कंसिडरेशन के साथ जब होता है तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दो कंडीशन हो सकती है। एंड विदाउट कंसिडरेशन में होता है रिलेटेड पर्सन और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड सम अदर केसेस नॉट टैक्सेबल में। तो ये वाली सारी बातें मैंने आप लोग को बताई और दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much।